See the stranger number 3. Who envy's none that chance doth rage, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं. इनवीज मीन्स इज जीलस ऑफ, ईर्ष्या करना. चांस मीन्स अवसर. डॉथ रेज मीन्स मेक ग्रेट, ऊंचा उठाना. वाइस मीन्स अवगुण. वाउंड मीन्स घाव. एंड स्टेट मीन्स राज्य. अर्थात इस स्टेंजा में कवि कहता है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हु इनवीज नन दैट चांस डॉट रेज, किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो संयोग या दुष्टापूर्वक कार्य कर महान बन गया हो. अर्थात वो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या या जलन नहीं करता है जो किसी धोखे का सहारा लेकर महान बन गया हो, या जिसने कभी यह नहीं समझा कि किस प्रकार प्रशंसा के साथ सबसे अधिक घाव किए जाते हैं. न जिसने राज्य के नियमों पर ही आश्रित होना सीखा हो, बल्कि जो शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता हो. एक प्रसन्न व्यक्ति केवल अपने शुद्ध आचरण के नियमों का ही पालन करता है, जैसा कि लेखक कवि ने बताया. लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. Context of this stanza will be: in this stanza, the poet has pointed out some special qualities of happy man. He says that a happy man is above false rumor. His actions are guided by his conscience. He is never worried. He does what he thinks proper. Now see the explanation of this stanza. That will be: beside the above qualities, the poet has pointed out some quality of a happy man. He says that a happy man does not envy, does not jealous anyone who become great either by chance or by fall means. Such a man is straightforward. He does not understand ambiguous words. He does not care for the rules of the state. He follows the rules of good conduct. Now see the next stanza, number 4. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter spread nor ruin make oppressor great. Difficult word of this stanza will be hath. H it is hath. Hath means has, रखता है. It is the poetic language. Rumors, चर्चाओं. Conscience, अंतःकरण. Retreat अर्थात शरण, शेल्टर. फ्लैटर, चापलूसी करने वाले. फॉल्स प्रेजिस करने वाले. रून, विनाश. ऑप्रेसर इट मीन्स अत्याचार करने वाले लोग. स्टेट मीन्स दशा और मेंटल कंडीशन अर्थात मानसिक दशा. इसका अर्थ हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री. कवि बताता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जिसका जीवन चर्चाओं से, र्यूमर से मुक्त होता है, जिसका अंतःकरण ही उसका शुद्ध विश्राम स्थल होता है, जो खुशामदी करने वाले व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता, जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता. अर्थात वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो किसी भी तरह के र्यूमर्स की चिंता उसे नहीं होती है, जो केवल अपनी इच्छाओं की अकॉर्डिंग ही काम करता है, जो सत्य है, सही है, प्रॉपर तरीके से सोचने विचारने के बाद ही जो काम करता है, जिसका अंतःकरण ही उसका विश्राम स्थल है, तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रसन्न होता है. लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. कॉन्टेक्स्ट विल बी:
A happy man is not moved by passion. His actions are balanced. He does not act rashly. He does not believe in tricks. Now explanation is that the poet points out some qualities of happy man. He says that a happy man is above the false rumor. A happy man is above the false rumors. His conscience gives him peace. His actions are guided by conscience. He does what he thinks proper. So he is never worried. He is always happy and enjoy carefree life. Flattery has no effect on him. It does not fill him with vanity. He does not care for his ruin. At his ruin, he is not so sad that his enemy may be glad. मतलब कि इसके नुकसान पर, इसके विनाश पर, प्रसन्न व्यक्ति के नुकसान या विनाश पर वो इतना मतलब अपने एनिमीज को अवसर नहीं देता है कि वो उनको खुश होने का अवसर प्राप्त हो सके. नाउ सी द लास्ट स्ट्रेंजा, स्ट्रेंजा नंबर 5, 5th. You will self study about this and see the last stanza of this poem. This man is freed from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, true not of lands, and having nothing at hath all. The last line, and having nothing he hath all. उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है. अर्थात इस पंक्ति में ऑक्सीमोरॉन नामक फिगर स्पीच का प्रयोग किया गया है, जहाँ दो अपोजिट बातें एक साथ की जाती है. हैविंग नथिंग यानी कि उसके पास कुछ नहीं है. ही हैथ ऑल मतलब ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है. कुछ न रहते हुए भी उसके पास सब कुछ है. अर्थात इस लास्ट लाइन जो है हैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें ऑक्सीमोरॉन नामक फिगर स्पीच का प्रयोग किया गया है. लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. द पोएट हैज पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज which make a man happy. Happy man is never hurried and worried in his life. He does what he thinks proper. The poet points out that in the concluding stanza, we are told that a happy man does not care for ups and downs of his life. A happy man does not care for the ups and downs of his life. He does not entertain false hope to rise. He is not afraid of his adverse days. For him, joy and sorrows are alike. Though he is not very rich, he is balanced. He is satisfied and does not crave for more. He has full control over his desires. His life is well balanced. Without having worldly passion, he moves on his own way. His outlook is not narrow and pessimistic. अर्थात लेखक इस अंतिम पद्यांश में हमें बताता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता. वह उन्नति के लिए झूठी आशाओं पर भी डिपेंड नहीं होता. वह अपनी विपत्ति के दिनों की चिंता भी नहीं करता. उसके लिए सुख और दुख दोनों तो एक समान होते हैं. यद्यपि वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं होता है, उसके पास सांसारिक सुख की तमाम चीज़ें नहीं होती हैं, फिर भी उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है. उसका जीवन अच्छी तरह से संतुलित होता है. सांसारिक संपत्ति न होने के बाद भी वह अपने मार्ग पर ही चलता है. उसका दृष्टिकोण न तो संकीर्ण सकरा होता है और न ही निराशावादी होता है.